والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے پرسنالٹی کے بارے میں، دا مسلم پرسنالٹی، کہ ہماری پرسنالٹی کیا ہونی چاہیے اور پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام کو جاننا ہے تو قرآن کو دیکھیے، مسلمان کو مت دیکھیے۔ تو یہ بہت حد تک صحیح ہے، کیونکہ مسلمان صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر جب بھی آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا قرآن اور حدیث۔ لیکن کچھ ایک دوسرے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو جو نان مسلم ہے وہ اس کو جو قرآن کا ایکسس نہیں رہتا، وہ قرآن عام طور پہ وہ قرآن نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا مسلمان عام طور پہ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کہ ہم کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم سوچے کہ ہر نان مسلم جو ہے، ہر غیر مسلمان قرآن ہی پڑھے، قرآن کو دیکھ کے اسلام جانے، تو یہ مشکل ہے۔ حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے، اسلام کو جاننا ہے تو قرآن ہی دیکھنا چاہیے، حدیث ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن جنرلی جو ہے، جو پہلا جو تعارف ہوتا ہے اسلام کا، وہ مسلمان کے ذریعے ہی ہوتا ہے، مسلمان پرسنالٹی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ایک اسلامی پرسنالٹی پیش کرتے ہیں، ہماری بات چیت ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا دوسروں کو جو رسپیکٹ کرنا ہے وہ ہے، ہمارا سچ بولنا ہے، تو یہ اگر رہے گا تو وہ جو غیر مسلم ہے، وہ جو نان مسلم ہے، وہ جو ہے امپریس ہو جائے گا۔ تو اگر ہم ہمارے بیہیویئر سے، ہماری پرسنالٹی سے دوسروں کو امپریس کر سکتے ہیں تو وہ اسلام کے نزدیک آ سکتا ہے۔ تو ہم مسلمان کیا ہم ہمارے پرسنالٹی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم ڈو وی ٹیک کیئر آف آور پرسنالٹی؟ کیا ہم سیریسلی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ باہر کیسے پیش آتے ہیں؟ جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو سب کی نظر ہمارے پہ ہوتی ہے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے کولیگس میں، ہمارے جو بزنس میں لوگ ہیں، مسلمس ہیں، نان مسلمس ہیں، تو کیا ہم خیال کرتے ہیں ہماری پرسنالٹی کا؟ ابھی سوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی، اسٹیٹس والی پرسنالٹی، یہ اسلامک پرسنالٹی سے، اسلامک سوفسٹیکیشن سے الگ ہے۔ عام طور پہ ہم جو کہتے ہیں کہ پرسنالٹی اچھی ہے یا بری ہے، یہ الگ سٹینڈرڈ، ویسٹرن سٹینڈرڈ سے ہم جج کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم مسلمانوں کے پاس ایک کرائٹیریا ہے، وہ ہے اسلامک پرسنالٹی کو جج کرنے کا۔ کیونکہ اسلام ایک دین ہے، اسلام ہر ایسپیکٹ پہ گائیڈنس دیتا ہے۔ اسلام گائیڈس us in every aspect of our life, and even how we dress, how we behave, how we talk, even that Islam guides us. For example, in Surah Luqman, the verse says that do not shout or do not talk so loudly, because the loudest voice is the braying of an ass. یعنی یہاں بھی اسلام ہمیں کیسے بات کرنا ہے وہ بھی ہم کو دکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹ پرسنالٹی کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک پی پی ٹی شیئر کر رہا ہوں آپ سے، دھیان سے دیکھیے۔ ڈو مائی کلوز ریفلیکٹ مائی پرسنالٹی؟ کیا میرے کپڑے جو ہے پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم جانیں گے سگنیفیکنس، ڈریسنگ کرنے کا سگنیفیکنس کیا ہے، کیسے ہمارے جو کپڑے ہیں ہماری پرسنالٹی کو انہینس کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور کپڑے پہننے میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اسلامک ایتھکس کیا ہے، اسلامک رولس اینڈ ریگولیشنز کیا ہے۔ کچھ ورڈس آئیں گے، جیسے ماڈesٹی ہے، حیا ہے، حجاب ہے، پرسنالٹی ہے،
क्राइटेरियाज, यानी हम लोग किस, हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं जज करने के, तो इंशाल्लाह ये आगे डिटेल में आएगा. तो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, feelings and behavior that make a person unique. You are known by your personality. पर्सनैलिटी यानी आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे डील करते हैं, आपको कितने जल्दी गुस्सा आता है, आप कितने सब्र वाले हैं, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में आते हैं. और हर इंसान की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है. अब पर्सनैलिटी में जो है ड्रेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. ओके, हमारे ड्रेस के चॉइस क्या है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, उसको बढ़ाता या घटाता है. योर पर्सनैलिटी एंड योर क्लोथ. इट इज राइटली सेड दैट अ मैन इज नोन बाय हिज ड्रेस एंड एड्रेस. एन इंडिविजुअल्स ड्रेसिंग सेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी. हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है हमारे बारे में बताता है, हमारे हमारे सोच के बारे में बताता है, हमारे हमारे अखलाक के बारे में बताता है. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैंसी क्लोथ होने चाहिए, महंगे क्लोथ होने चाहिए, पॉपुलर ब्रांड्स होने चाहिए, तभी हम जो है मतलब अच्छे लगेंगे, ये ऐसी बात नहीं है. बल्कि इस्लामी तरीके से साफ कपड़े, इस्लामी रूल्स के हिसाब से लूज कपड़े, सही कपड़े, ये पहनना ही हमारी पर्सनैलिटी को एनहेंस करता है. और इस्लाम हमको इजाजत देता है कि आप, अगर आप, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, तो आप महंगे से महंगे कपड़े पहन सकते हैं, आप पॉपुलर ब्रांड्स पहन सकते हैं. इसमें इस्लाम ने आपको रोक नहीं लगाई है. अगर आप, अल्लाह ने आपको दिया है, माल और दौलत दी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पहन सकते हैं. लेकिन ये हर मुसलमान के लिए कंपलसरी नहीं है. आप अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से जो है कपड़े पहनिए. और कपड़े कैसे एनहांस करते हैं आपके पर्सनालिटी को, ये इसका ध्यान रखिए. क्लोथ्स रिफ्लेक्ट हु यू आर, हाउ यू फील एट द मोमेंट, एंड समटाइम्स इवन व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. मिसाल के तौर पे अभी आप स्कूल का एग्जाम्पल लेंगे. आप स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, बच्चों का एक यूनिफॉर्म होता है. अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो बच्चा जो है वो स्कूल को बहुत लाइटली लेगा, मतलब ध्यान नहीं देगा. लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है, वो एक स्टडी मोड में आ जाता है, वो उसको, इसकी साइकोलॉजी चेंज होती है. मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला जो है ड्रेस में नहीं है, ऑफ ड्यूटी है. उसका जो पुलिस वाला जो ऑफिशियल ड्रेस है वो ड्रेस नहीं पहन रहा है, सादे कपड़े पहना है, ही इज इन सिविल ड्रेस. तो आप पर या लोगों पर उसका रौब नहीं पड़ेगा. लेकिन जैसे ही वो सिविल ड्रेस छोड़ के अपना पुलिस वाला ड्रेस पहनता है, तो लोगों पे उसका रौब पड़ जाता है. राइट. एक, अगर आप जा रहे हो किसी रास्ते से और आपको एक एड्रेस पूछना है, एक इंसान खड़ा है, बहुत ही मतलब मॉडर्न कपड़े हैं और बहुत ही इसके हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग है, और जो है एकदम अजीब सा ड्रेसिंग है, जैसे कि आजकल के नौजवान करते हैं, फिल्म वाली ड्रेसिंग है. और एक उसके ऑपोजिट में एक इंसान खड़ा है, सिंपल ड्रेस है. ओके, सिंपल ड्रेस है, सिंपल हेयर स्टाइल है, एक अच्छे घर का लग रहा है लड़का. तो आप किसको पूछेंगे एड्रेस? तो बट नेचुरल 90% से ज्यादा लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, उस आदमी को पता पूछेंगे जो सिंपल ड्रेस में है, जो अच्छे ड्रेस में, डिसेंट ड्रेस में है. यानी हमारा जो ड्रेस है, हमारा जो लिबास है, हमारे बारे में बहुत बताता है. और अगर साइकोलॉजी की बात करें, तो जैसे ही हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम एक काम के लिए तैयार हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम वैसे ही कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ किताब पढ़ रहे हैं, तो हम वही हमारे घर के एकदम वही ड्रेस में अगर हैं, बैठे हैं, तो हमें मूड नहीं आएगा पढ़ने का, हमें दिल नहीं लगेगा. लेकिन जैसे ही हम साफ सुथरे होके एक खास तौर के कपड़े पहन के घर पे भी अगर हम बैठेंगे, कोई काम करें, तो वो काम में हमारा दिल लगेगा. भाई इसीलिए अल्लाह ने नमाज के लिए कहा है, एक आयत उतारी है, आयत नाजिल की, इसके आगे इंशाल्लाह आएगा, कि अल्लाह कहते हैं कि आपके बेहतरीन कपड़े पहनिए नमाज के लिए, मस्जिद को जाने के लिए और दूसरे ओकेजन्स के लिए. यानी जैसे ही हम
وہ ایک खास ढंग के कपड़े पहनते हैं, हम उस मूड में आ जाते हैं. तो ये भी हमारे साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है. You really need to know what you are wearing. Do not wear something just because everyone else is wearing the same. आजकल हमारे जो नौजवान हैं, जो दूसरे पहन रहे हैं इसलिए हम पहन रहे हैं, दूसरे टाइट जीन्स पहन रहे, स्किन टाइट जीन्स तो हम पहन रहे, दूसरे हेयर स्टाइल ऐसी कर रहे तो हम भी कर रहे. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. Clinical psychologist Dr. Jennifer Baumgartner, she wrote a book on this phenomena. The book's name is You Are What You Wear. What Your Clothes Reveal About You. आप आपके कपड़े हैं जो आपके बारे में क्या बताते हैं. और वो पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से कपड़े जो है, अगर हम ढंग के पहनेंगे, डिसेंट कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो कैसे हमारे जिंदगी पे उसका असर होता है. अभी इस्लामिक पर्सनैलिटी क्या है? इस्लाम गिव्स गाइडेंस अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इस्लाम जो है हर चीज में हमको गाइड करता है. इस्लाम ड्रेस के बारे में कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है कि यही ड्रेस पहनना चाहिए, राइट. द सुन्ना ऑफ ड्रेसिंग इज देयर. सुन्ना जो अल्लाह के रसूल कैसे कपड़े पहनते थे वो है, लेकिन फंडामेंटल गाइडेंस है. मिसाल के तौर पे अरब देश में, अरेबिया में जैसे धूप है, रेगिस्तान है, वहां पे जो कपड़े पहनते हैं, तो एक मुसलमान अगर ऐसे एरिया में रहता है, ऐसे देश में रहता है जैसे यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर कश्मीर में है, अगर ऐसे देश में जहाँ पे ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे अगर वो सोचेगा नहीं मैं अरब का ही ड्रेस पहनूंगा, तो वहां पे वो ही विल नॉट बी एबल टू लिव देयर, राइट. वो रह नहीं पाएगा, मर जाएगा, राइट. तो इस्लाम क्या करता है, एक बेसिक गाइडेंस देता है, यानी कपड़े आपके लूज होना चाहिए, कपड़े साफ होना चाहिए, कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए. जो जेंट्स है, जो मेल्स है, वो उनकी ट्राउजर जो है टखनों के ऊपर होना चाहिए. जनरल गाइडेंस देता है, राइट. तो जनरल गाइडेंस क्या है, इंशाल्लाह हम देखेंगे. इस्लाम के 2 सोर्सेस हैं गाइडेंस के, कुरान और हदीस. तो जो भी कुरान और हदीस में कपड़ों के बारे में है, पर्सनैलिटी के बारे में है, हमें देखना चाहिए. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुरान में, सूरह अल आराफ में, अल्लाह कहते हैं, ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, wear your beautiful apparel at every time and place of prayer. Eat and drink, but waste not by excess, for Allah loveth not the waster. अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में हुक्म दे रहे हैं. देखिए, हम लोग जो है कुछ चीजों को जो है बिल्कुल लाइटली देखते हैं. मिसाल के तौर पे जहाँ पे नमाज का हुक्म एस्टैब्लिश चला, बिल्कुल हम लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं. अल्कोहल इज हराम, इंटॉक्सिकेंट्स आर हराम, शराब पीना हराम है, बिल्कुल हम लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जो है उसको लाइटली लेते हैं. ये एक चीज है. अल्लाह ताला यहाँ हुक्म दे रहे, वेयर योर ब्यूटीफुल अपैरल एट एवरी टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रेयर. ये कितना इंपॉर्टेंट है, यानी ड्रेसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. अल्लाह ताला हुक्म दे रहे कि हर जगह जब भी आप तो एक अच्छे कपड़े पहनना चाहिए. और खास करके जब नमाज को जा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तो एक मिसाल के तौर पे सिस्टर्स भी जो हैं, सिस्टर्स भी अगर घर में पढ़ रही है नमाज, लेकिन नमाज के लिए खास लिबास होना चाहिए एक, क्योंकि हम उस मूड में आते हैं, इबादत के मूड में आ जाते हैं. और अनफॉर्चुनेटली वी सी, हम देखते हैं कि हमारे जो यूथ है पार्टीज में अच्छे कपड़े पहनेंगे, दावतों में अच्छे कपड़े पहनेंगे, जब नमाज को आएंगे तो वही पुराना रात में पहना हुआ टी शर्ट और ट्रैक पैंट, गंदी से ट्रैक पैंट पहन के आते हैं. तो ट्रैक पैंट टी शर्ट पहनना हराम नहीं है, आप पहन सकते हैं, लेकिन आप ख्याल रखिए कि वो अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप स्किन टाइट टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, स्किन टाइट जीन्स पहन के आ रहे हैं, गंदे कपड़े पहन के आ रहे हैं. अक्सर आप देखते हैं कि हमारे नौजवान मस्जिद में जब आते हैं तो उनको कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ हुक्म दे रहे, वेयर योर ब्यूटीफुल अपैरल, यानी आपके बेहतरीन कपड़े पहनिए हर वक्त, और खास करके नमाज के वक्त. तो जब भी हम अभी इसके बाद नमाज को जाएंगे, मस्जिद को जाएंगे, या फिर घर पे भी नमाज पढ़ेंगे, तो एक खास किस्म का लिबास, एक अच्छा सा लिबास हम पहन के जाएं. अच्छा सा लिबास यानी महंगा लिबास नहीं है.
अच्छा सा लिबास मतलब ब्रांडेड ही होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं इसके आगे कुरान में, ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, वी हैव bestowed raiment upon you to cover yourself, and as an adornment, and the raiment of righteousness that is better. Such are among the verses of Allah that they may remember. ए ए बनी आदम, ए इंसानों, हमने तुम्हें कपड़े दिए ताकि तुम अपने आप को ढांक सको और उसको खूबसूरती की तरह भी इस्तेमाल करो। एक खूबसूरती तरह अपने आप को खूबसूरत बनाने में भी कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं एंड द रेमेंट ऑफ राइचियसनेस, लेकिन जो है नेकी का जो लिबास है, नेकी का जो बिहेवियर है, अच्छे अखलाक जो है, ये अच्छे कपड़े से बेहतर है। यानी आप अच्छे कपड़े पहनेंगे लेकिन आपके अखलाक ठीक नहीं है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आपका बिहेवियर जो है गलत है, बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ये गलत बात है। कपड़े अच्छे पहनना तो है लेकिन अखलाक आपके अच्छे होना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं नेकी का लिबास जो है वो बेहतर है, यानी नेक कैरेक्टर, अच्छे अखलाक ये बेहतर है। सच आर अमंग द वर्सेस ऑफ अल्लाह दैट दे मे रिमेंबर, तो ये अल्लाह की निशानियां हैं, जो भी अल्लाह बता रहा है ये अल्लाह की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो याद रखते हैं, जो ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला हिजाब के बारे में कहते हैं सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ओ प्रोफेट, tell thy wives and daughters and the believing women that they should cast their outer garments over their persons when abroad. That is most convenient that they should be known as such and not molested. And Allah is oft forgiving, most merciful. तो सिस्टर्स के लिए, औरतों के लिए खास हुक्म है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब भी आप बाहर निकलते हो तो क्लोक जो है, जिलबाब जो है, बुरका जो है, जो भी आप कहेंगे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टाइल्स हैं बुरके के। अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो अलग एक बुरका रहेगा, आप इंडिया में एक अलग टाइप के बुरके पहनते हैं टिपिकल, ईरान में जाएंगे तो एक अलग रहेगा, राइट। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपना जिलबाब, अपना जो क्लोक है वो पहन के जाइए। और जो है कोई भी, हर कंट्री का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, फैशन अलग है, लेकिन दैट फैशन शुड मीट द इस्लामिक स्टैंडर्ड्स। कोई भी फैशन, कोई भी टाइप का बुरका पहनिए, लेकिन इस्लामिक जो फंडामेंटल जो क्राइटेरियाज हैं, बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि लूज होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, बुरका इतना अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए कि उसका मकसद ही फौत हो जाए। बुरके का मकसद ये है कि लोगों के बुरी नजरों से हमें बचाए, लोग आप पर ध्यान ही ना दें। ठीक है। तो लेकिन बुरके कुछ ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली कि बुरके इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने फैशनेबल होते हैं कि लोग नहीं, मतलब उसका असर उल्टा होता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग उसको देखने लगते हैं। तो एक फैशन की एक हद है, आप सब अपने अपने पर्सनल चॉइस है कि बुरके की फैशन कितनी हद तक मतलब होने, मतलब एक अच्छा बुरका, एक अच्छा सा बुरका होना चाहिए, अच्छा कलर भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना अट्रैक्टिव हो, इतना कलरफुल हो, रेड कलर का है या फिर कोई और कलर का है जो अट्रैक्टिव कलर हो, अट्रैक्टिव उसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आप अपोजिट कर रहे हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसका बिल्कुल अपोजिट आप कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रहे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है उमर रजी अल्लाह अन्हु का। ओके, द कीज ऑफ जेरूसलम गिवन टू उमर रजी अल्लाह अन्हु। उमर रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो सीरिया में जंग चल रही है क्रिश्चियंस के खिलाफ, और सीरिया में जंग जीत जाते हैं। वहाँ के जो कमांडर्स हैं, अबू उबैदा इब्न अल जर्रा हैं, खालिद इब्न अल वलीद हैं, सारे कमांडर्स लड़ रहे हैं और वहाँ जंग जीत जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो प्रीस्ट है चर्च का, वो कहता है कि मैं जो जेरूसलम की जो चाबी है वो मैं तुम्हारे अमीर के हाथ में दूंगा, तुम्हारे खलीफा के ही हाथ में दूंगा, मैं किसी और के पास चाबी नहीं दूंगा। तो मैसेज भेजा जाता है उमर रजी अल्लाह अन्हु को, और उमर रजी अल्लाह अन्हु प्रिपेयर फॉर द जर्नी फ्रॉम मदीना टू जेरूसलम। ओके, वो और निकलते हैं तो ऐसा बहुत बड़ी फौज लेके, बहुत बड़ा ग्रुप लेके नहीं निकलते हैं, बस वो उमर रजी अल्लाह अन्हु और उनके जो
मतलब गुलाम है, स्लेव है, बस दो ही लोग निकलते हैं, और ऊंट एक होता है, एक ऊंट पे वो दोनों निकलते हैं। कभी वो चलते हैं तो उनका स्लेव बैठता है, कभी वो स्लेव चल रहा है तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ऊंट पर बैठे हुए हैं। ऐसे करते करते वो अपनी जर्नी तय करते हैं और जेरूसलम के नजदीक आ जाते हैं। और जैसे ही जेरूसलम के नजदीक आ जाते हैं, वहां पे एक नहर होती है, नहर बहती है, और उस वक्त जो टर्न जो है बैठने का, वो मतलब गुलाम का होता है। वो गुलाम जो है वो उमर रजी अल्लाह अन्हु को कहता है कि देखो जेरूसलम बिल्कुल सामने है, गेट के पास है हम लोग, और आप बैठो। उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नो, द टर्न इज अ टर्न, आपकी टर्न है, आप ही बैठेंगे। और वो चलते हैं तो एक नहर आ जाती है, और उमर रजी अल्लाह अन्हु जो अपने जो सॉक्स हैं, अपने जो खुफ हैं, वो निकालते हैं और अपने कंधे पे डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब जो है अबू उबैदा इब्न अल जर्रा वहां आते हैं और कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं नहीं चाहता कि जेरूसलम के जो एलीट लोग हैं, यानी जो क्रिश्चियंस के एलीट लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि ये लोग आपको इस हालत में देखें। और कहा जाता है कि उस वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु का ड्रेस पे 13 पैचेस लगे थे, 13 जगह जो है कपड़ों पे, यानी कपड़े फटे हुए के कपड़े फटे होने की वजह से उनको सिए थे, तो 13 पैचेस थे उनके ड्रेस पे। आप इमेजिन कर सकते हो, उमर रजी अल्लाह अन्हु वाज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स ऑफ दैट टाइम। बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के को कंट्रोल करते थे, वो खलीफा थे, इतने पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज थे, वन ऑफ द रिचेस्ट, बैतुल माल, इतना पैसा आम हो गया था, इतना दौलत, इतनी पावरफुल आर्मी, पूरी दुनिया के लोग उनसे डरते थे, मुस्लिम फौज से डरते थे। लेकिन ये खलीफा, 13 जगह उनके कपड़े पे पैचेस थे। यानी मैं बताने की मकसद ये है कि अच्छे कपड़े जब अल्लाह ताला कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब ब्रांडेड कपड़े होना चाहिए, ऐसे ही कपड़े होना नहीं, आप सिंपल भी कपड़े पहन सकते हैं, और अगर अल्लाह ने आपको इस्तेताद दी है तो आप ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला एक जगह कहते हैं, अल्लाह एक ऐसा जिक्र है कि अल्लाह ताला कहते हैं, यानी आई आई थिंक दैट इज हदीस, एक हदीस में आता है कि अगर अल्लाह ने आप पे फजल किया है तो उस फजल को दिखाओ। अल्लाह ताला ने आप पे आपको दिया है तो आप पहन सकते हैं, शो द ग्रेस ऑफ अल्लाह, शो द मर्सी ऑफ अल्लाह, राइट। तो उमर रज़ी अल्लाह आगे बढ़ते, अबू उबैदा इब्न अल जर्रा आते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोग आपको इस हालत में देखें। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अरे अबू उबैदा, कम से कम तुम तो ये बात नहीं कहना चाहिए। हम हम जो हैं एक बारबेरियन लोग थे, हम एक गुलाम कौम थे, अंधेरे में थे, एक जंगली कौम थे। तो हमको इज्जत मिली कुरान से, अल्लाह ने हमको कुरान से इज्जत से नवाजा, पावर से नवाजा। और अगर कोई मुसलमान कुरान को छोड़ के किसी और चीज से इज्जत हासिल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह उसको जलील करेगा। तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल जो जरिया है इज्जत का, वो कुरान है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कितना अल्लाह की बातें मानते हैं, हम कितना अल्लाह के रसूल के सुन्नत को फॉलो करते हैं, ये हमारा स्टेटस है। हमारा स्टेटस कार से, बंगले से, कपड़े से एक मुसलमान का स्टेटस नहीं होता। एक हदीस याद आती है, अल्लाह के रसूल के सामने से अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, और जो है एक बहुत ही गरीब आदमी वहां से जाता है, नहीं, एक अमीर आदमी जाता है पहले। अमीर आदमी जाता है तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो सब लोग कहते हैं, ये तो बहुत अमीर है, ये जिनको भी राय देगा उसकी राय को ली जाएगी, ये जिसको शादी का रिश्ता भेजेगा उसका रिश्ता कबूल किया जाएगा। इसकी तारीफ करते हैं। कुछ देर के बाद एक गरीब आदमी जाता है, अल्लाह के रसूल पूछते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो साहबा कहते हैं कि ये तो बहुत गरीब है बेचारा, बेकार है, तो लोग इसको बेकार समझते हैं। अगर ये कोई राय देगा, कोई मशवरा देगा तो कोई उसके मशवरे को लेगा नहीं, अगर ये किसी को रिश्ता भेजेगा तो उसका रिश्ता कबूल भी नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह की नज़र में जो है ऐसे जो लोग गरीब लोग हैं, कई ऐसे जो लोग हैं
جو اللہ کی نظر میں بہت ہی اونچا مقام رکھتے ہیں. چاہے وہ دنیا میں بہت ہی نیچا مقام رکھتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں ایسے لوگ, کئی لوگ ایسے جو ہے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. اللہ کی نظر میں ان کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے. تو یہ قصہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کا, ایک انسپائرنگ سٹوری تھی. اور جب وہ جو پریسٹ ہے اور جیروسلم کے چرچ کا بڑا بڑا چرچ کا پریسٹ ہے, وہ جب دیکھتا ہے دور سے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے جو خلیفہ مسلم ایسے آ رہا ہے اتنے سادے کپڑوں میں, تو وہ کہتا ہے اسلام ہیز سرپاسڈ ادر ریلیجن. وہ کہتا ہے کہ اسلام دوسرے مذہبوں کے آگے چلا گیا, دوسرے مذہبوں کو پیچھے چھوڑ دیا اسلام نے. تو دیکھیے کیسے کمنٹ ہے, زبردست کمنٹ ہے, ہمیں کیسے سیکھنا چاہیے. اس کے آگے 6 کرائٹیریاز آف حجاب, یہ تو اکثر ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایکسٹینٹ کیا ہونا چاہیے. آدمی اور عورتوں کے لیے ایکسٹینٹ الگ الگ ہے, اورا الگ ہے, لیکن باقی کے جو ہیں, باقی کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ عورت اور آدمی کے لیے سیم ہے. لوز ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, گلیمرس نہیں ہونا چاہیے, اور اپوزٹ سیکس کا مطلب اٹ شوڈ ناٹ ریزمبل دا اپوزٹ سیکس, یعنی عورت آدمی کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, آدمی جو ہے عورتوں کی طرح کپڑے نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے, آج کل کے جو شادیوں میں وغیرہ ایسے کپڑے نکلے جو جینٹس لیڈیز کے جیسے کپڑے پہنتے, شادیوں میں ایک اسٹیٹس ہو گیا ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر ان بلیورس کے کپڑے نہیں ہونا چاہیے, کوئی خاص سمبلس ہیں ان کے, جیسے کراس ہے, کوم ہے, کوئی اور خاص کلر کا کپڑا پہن رہے, تو ان بلیورس کے کپڑے سے بھی الگ ہونا چاہیے. دا کمپلیٹ حجاب, حجاب صرف کپڑوں کا نہیں ہے, بلکہ حجاب جو ہے ہمارے بیہیویئر کا ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ہے, ہمارے کیسے ہم بات کرتے ہیں, کیسے ہم چلتے ہیں, کیسے ہمارے آنکھوں کا حجاب ہے. رائٹ, مثال کے طور پہ ایک بہن ہے, اگر وہ برقع صحیح پہنی, اسلامک برقع پہنی ہے, لیکن وہ چلنے کا سٹائل اس کا ایسا ہے, زور زور سے ہنس کے بات کر رہی ہے, ٹھیک ہے, فون پہ بات کر رہی ہے, روڈ رستے پہ جا رہی ہے, فون پہ بات کرتے زور سے بات کر رہی ہے, تو یہ حجاب میں نہیں, یہ بھی حجاب میں آتا ہے کہ آپ کیسے چل رہے ہیں, کیسے آپ دیکھ رہے ہیں, کیسے آپ بات کر رہے ہیں, کیسے آپ ہنس رہے ہیں, یہ ساری چیزیں حجاب میں آتی ہیں, تو اس کا خیال رکھا جائے. اسلامک ایٹیکیٹس آف ڈریسنگ, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ گولڈ, اوکے, اللہ کے رسول ایک بار سلک کو اپنے رائٹ ہینڈ میں لیتے ہیں اور گولڈ کو, سونے کو اپنے لیفٹ ہینڈ میں لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیز آر فوربڈن فار دا میلس آف مائی امت, یعنی آدمیوں کے لیے سلک اور سونا حرام ہے, پہننا حرام ہے. ٹھیک ہے, دا پروفیٹ سیڈ اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ دا ون ہو لوورز ہز گاؤن آؤٹ آف ایروگنس, جو لمبے لمبے کپڑے پہن کے ٹکنوں کے نیچے بھی جینٹس میں, اور جو ہے روب کرتا ہے اور مطلب دکھاوا کرتا ہے, تو اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. The prophet said, wear white clothing, for it is purer and better, and shroud your dead in white. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ زیادہ میں زیادہ وائٹ کلوز پہنو, کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں, اور آپ کے جو ڈیڈ ہیں, آپ کی جو میت ہے, اس کو سفید کپڑے میں اس کو ڈھانکو, یعنی سفید کپڑا پریفر کرنا چاہیے. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد ہیئر کٹ میں آتا ہے. ہیئر کٹ میں جو ہے یہ عام طور پہ ہمارے مسلمان بچے بھی کرتے ہیں, مسلمان یوتھ بھی کرتے ہیں, یہ بہت ہی غلط ہے. اللہ کے رسول نے صاف طور پہ حکم دیا ہے اس کا, اسلامک ایٹیکیٹس آف ہیئر کٹ. اگر سنن نسائی اور ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے رسول ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا جو ہے ایسی ہیئر کٹ ہے, یہ ایک دم سائڈ سے ایک دم کم اور اوپر زیادہ, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں شیو آل آف اٹ اور لیو آل آف اٹ, یا تو سبھی شیو کرو پورا سر, یا تو مت شیو کرو, آپ سیدھی نارمل کٹنگ کرو. یہ جو ایسے کٹنگ کرتے ہیں یہ آتا ہے قضا کے اندر آتا ہے, اسے کہتے ہیں قضا, اور قضا حرام ہے. اور آج کل فٹ بال سٹارز ہے, اسپورٹس سٹارز جو ہے, یہ ایسی کٹنگ کرتے ہیں جو ہمارے بچوں نے بھی, ہمارے یوتھ نے بھی, ہمارے نوجوان نے بھی اڈاپٹ کیا ہے, تو یہ حرام ہے. تو اگر آپ ایسی کٹنگ کر رہے ہو یا پیرنٹس ایسی کٹنگ الاؤ کر رہے ہیں, تو ایک حرام ہے, ایک حرام کام آپ کے گھر میں ہو رہا ہے, اس کا دھیان رہے. Clothes are not to feel proud. Whoever dresses himself out of pride in this world, Allah will dress him with the same clothing on the day of Qiyamah, and he or she will be entered into hell.
تو कई हम हमारे लोग हैं जो शादी में जाते हैं तो इतना इतने सब महंगे कपड़े पहन के जाते हैं, या फिर इतनी प्राइड, इतना अकड़ते हैं, इतना तकब्बुर करते हैं, तो ये अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अब अच्छे कपड़े हैं, महंगे कपड़े पहन सकते हैं आप, लेकिन उसको तकब्बुर मत करो। और ख्याल रहे कि दूसरी बहनें भी आती हैं, उस शादी में कई ऐसी बहनें आती हैं जो जिनकी इस्तेतात नहीं है खरीदने की, आपके कपड़े इतने सब देखेंगे, इतना सब, तो वो उनको फील हो जाएगा, राइट? दे विल नॉट फील नाइस, दे विल फील सैड। तो ये भी ख्याल रखें, तो कितना आप शो ऑफ कर रहे हैं, कितना। और तकब्बुर करना तो बिल्कुल गलत है। के बाद है अल्लाह के रसूल कहते हैं, नो वन विल एंटर पैराडाइज इफ दे हैव एट हार्ट अ ग्रेन ऑफ एरोगेंस। अगर एक दाना भी तकब्बुर आपके दिल में है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो एक साहबी पूछते हैं, अ मैन में लाइक हिज गार्ब एंड हिज शूज टू बी ब्यूटीफुल। एक आदमी को पसंद है अपने कपड़े और अपने जूते जो है खूबसूरत होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके कपड़े खूबसूरत है, आपके जूते खूबसूरत है। अल्लाह इज ब्यूटीफुल एंड लाइक्स ब्यूटी। अल्लाह जो है खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर यानी दूसरों के राइट्स को नहीं देना, दूसरों के हक अदा ना करना, और दूसरों को हकीर समझना। दूसरों को गया गुजरा हकीर, ये इतना गरीब है, क्या कपड़े पहन के खड़ा है मेरे बाजू में, मैंने इतने ब्रांडेड कपड़ा पहना और मेरे बाजू में ऐसा कपड़े पहन के खड़ा है। यानी दूसरों को हकीर, अरे ये इतने सस्ते शूज पहना, जूते पहना है, ये तो सेल में लगे हुए कपड़े पहनता है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पहनना है आप पहनो, लेकिन ऐसा ख्याल मत लाओ कि दूसरे गंदे कपड़े पहनते हैं या फिर बहुत ही सस्ते कपड़े पहनते हैं, हमारे बाजू में खड़े होने के लायक नहीं है लोग, हमारे शादियों में आने के लायक नहीं है लोग, हमारे फंक्शंस में आने के लायक नहीं है लोग। अगर हमारे हमारे मेरा रिश्तेदार है, मेरा सगा भाई है, लेकिन गरीब है, अगर मैं मेरे बच्चों की शादी में बुलाऊंगा तो ये ऐसे गंदे कपड़े पहन के आएगा, तो मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। मॉडेस्टी एंड हया। तो हया जो है, मॉडेस्टी में इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हया जो अरबिक वर्ड है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। मॉडेस्टी यानी शाइनेस है कि एक किसी कोई गलत काम कर रहा है, कोई गुनाह का काम कर रहा है, तो एक मोमिन जो है उसको हया आती है। कोई ऐसे कपड़े पहनना है जो गलत कपड़े, तो उसको हया आती है। कि कोई गरीब कोई कुछ मांग रहा है और उसको नहीं देने में मुसलमान को हया आती है। यानी हया जो है ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। ठीक है, तो हया के बारे में अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल बुखारी की हदीस है, इफ यू हैव नो शेम डू एज यू विश। अगर आपको हया नहीं है, शर्म नहीं है, तो आपको जो चाहे करना है वो करो, अल्लाह के रसूल कहते हैं। एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, फेथ कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70 ब्रांचेस एंड हया इज अ पार्ट ऑफ फेथ। ईमान जो है 70 उसके शाखे हैं, और हया जो है उसकी एक शाख है। यानी हया करना, अच्छे कपड़े पहनना, नॉर्मल कपड़े पहनना, अच्छी बात करना, गाली नहीं देना, जोर से बात नहीं करना, अच्छा बिहेवियर करना, दूसरों की इंसल्ट नहीं करना, बड़ों की इज्जत करना, बच्चों से प्यार से बात करना, ये सारी चीजें हया। अगर ऐसा नहीं करते तो उनको हया आती है, उनको उनको शर्म आती है कि अरे मैं कैसे जोर से बात किया, अरे मैं कैसे गाली दे के बात कर रहा हूँ, अरे कैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, कैसे जोर जोर से हंस रहा हूँ, अरे मेरे कपड़े कैसे हैं। ये सब जो है, एक मुसलमान को जो है हया होनी चाहिए, जो सारे एस्पेक्ट को कवर करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, वेरीली देयर इज अ स्पेशल मोरालिटी ऑफ एवरी रिलीजन एंड द स्पेशल मोरालिटी ऑफ इस्लाम इज मॉडेस्टी। एक खास किस्म की अच्छाई हर हर मजहब में है, और इस्लाम की जो अच्छाई है वो हया में। तो हया के साथ आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप अच्छा रहिए, आप अच्छे से अच्छे कपड़े, लेकिन हया रखिए साथ में। बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, दूसरों को नीचा मत देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें हया में आती है। आप जब भी बाहर जाते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन के जाइए, अच्छे साफ कपड़े पहन के जाइए, ये आपके पर्सनैलिटी को एनहेंस करेगा। और जब मुस्लिम गैर मुस्लिम लोग आपको देखेंगे तो वो भी इम्प्रेस होंगे, वो भी आपकी बातचीत के जरिए, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे दूसरों की मदद करते हैं, आप कैसे हंसते हैं, आप कैसे, ये सारी चीजें ऑब्जर्व होते रहती हैं।
تو जब एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी देखेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, कौन सा दीन है इनके पास, कौन सा मजहब है इनके पास जो इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। फिर दुआ फॉर वेयरिंग न्यू क्लोथ, ये तो इंशाल्लाह सब लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़ना चाहिए। हाँ, और जो है दुआ फॉर समवन हु हैज पुट ऑन न्यू क्लोथ, दूसरा कोई कपड़े पहन नया कपड़े पहनना है तो उसे कहते हैं मे यू वेयर इट आउट एंड मे अल्लाह गिव यू अनदर इन प्लेस। तो दुआ है कि आप जो है ये कपड़ों को पहनिए, जब तक पहनिए जब तक ये खत्म ना हो जाए, यानी एक पूरा फट ना जाए, और अल्लाह उसके बदले आपको और दूसरे भी कपड़े दे। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं कयामत के दिन, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने कपड़ों को टखनों के नीचे तकब्बुर के साथ घसीटते हैं। तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ओ अल्लाह मैसेंजर, वन साइड ऑफ माई इजार हैंग्स लो, एक साइड की जो इजार मेरी जो है वो नीचे आती है, टखने के नीचे आती है, अगर मैं उसको ध्यान नहीं रखूँ तो वो नीचे आती रहती है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु डू दैट आउट ऑफ कंसीट। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम वो नहीं हो जो तकब्बुर से करते। फिर प्रोफेट कहते हैं, द पार्ट ऑफ एन इजार विच हैंग्स बिलो द एंकल इज इन द फायर, दिस इज फॉर मेल्स। और ये जो है टखनों के ऊपर अपने ट्राउजर्स अपना, ये बहुत कम मुसलमान ध्यान देते हैं, यानी बहुत सी जो मस्जिदों में माशाल्लाह बहुत सब, लेकिन ये एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान कम देते। अच्छे से अच्छे नेक से नेक लोग माशाल्लाह सब सब अच्छी बात है, बहुत बड़ी से बड़ी जमात से जुड़ के हैं, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है टखनों के ऊपर रहना, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो इसका हालांकि इसके बारे में बहुत ताकीद दी गई है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक आदमी चल रहा था, दो गारमेंट, दो कपड़ों का उसका लिबास था, और बहुत तकब्बुर कर रहा था, बहुत बाल वाल एकदम हेयर वेल कोम्ड, बाल एकदम स्टाइल में बिठाया था। तो अल्लाह कॉज्ड हिम टू सिंक इन द अर्थ, तो अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया, और वो कयामत के दिन तक धंसता होगा। यानी कितना बुरा अजाब है, यानी तकब्बुर करना अपने कपड़ों पे कितनी बुरी बात है। फिर अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकून है उनके बारे में आता है, उनके जो बेटे हैं उनका भी नाम अब्दुल्ला है। तो ये अब्दुल्ला ये रईसुल मुनाफिकीन जो है अब्दुल्ला इब्न उबई, ये जो जब मर जाते हैं तो उनका बेटा अब्दुल्ला उनके पास, अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे आपका जो शाउट, आपके जो कपड़ा है उसको दो ताकि मैं मेरे बाप के लिए कफन का इस्तेमाल करूँ। तो अल्लाह के रसूल उसको दे देते हैं, और वो रिक्वेस्ट करता है कि उस मेरे बाप की जो जनाजे की नमाज भी पढ़ी। उमर रजी अल्लाह अन्हु स्टॉप करते हैं, उनको अल्लाह के रसूल को रोकते हैं कि आप जो है आपका जो मुबारक लिबास जो है वो ऐसे रईसुल मुनाफिकीन को दे रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे कपड़े उससे उसको आग से नहीं बचा पाएंगे। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने आपको रोका है ना कि हिपोक्रेट्स के ऊपर आप नमाज मत पढ़िए, उनकी जनाजे की नमाज मत पढ़िए, उनके लिए दुआ नहीं कीजिए। तो ये वो कहते हैं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये जो मुनाफिकों के लिए आप जनाजे की नमाज मत पढ़िए और उनके माफी की दुआ भी मत कीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं वेदर यू आस्क फॉरगिवनेस फॉर देम और आस्क नॉट फॉरगिवनेस फॉर देम, इफ यू आस्क फॉरगिवनेस फॉर देम 70 टाइम्स अल्लाह विल नॉट फॉरगिव देम। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने कितना भी माफी मांगू, मुनाफिकों की बख्शिश होने वाली नहीं है। और फिर आयत नाजिल होती है कि अल्लाह की आयत नाजिल होती है, एंड नेवर प्रे फॉर एनी ऑफ देम दैट डाइज नॉर स्टैंड एट हिज ग्रेव। अल्लाह हुक्म देते हैं कि ऐसे जो मुनाफिक हैं, ऐसे दुश्मनान इस्लाम जो है, उनकी जनाजे की नमाज आप मत पढ़ी। तो उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल जो है जनाजे की नमाज, जो मुनाफिकों की जनाजे की नमाज थी, आप नहीं पढ़े। और एक बात है कि अगर कोई डिसबिलीवर है तो उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं लाइफ में। उसको मिसाल के तौर पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी हिदायत के लिए, उनके हेल्थ के लिए। लेकिन अगर एक डिसबिलीवर, एक नॉन मुस्लिम एक डिसबिलीवर मर जाता है, उसके बाद हम उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। और अक्सर बहुत सारे मुसलमान गलती करते हैं, व्हाट्सएप पे जब मैसेज आता है कोई
नॉन मुस्लिम भाई हमारा कोई मर जाता है तो RIP, RIP यानी RIP रेस्ट इन पीस। तो हम, अल्लाह का हुक्म है कि जब डिसबिलीवर्स जो है मर जाते हैं उसके बाद हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, तो RIP भेजना भी गलत होता है। ठीक है, हम भेज सकते हैं डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस, हमें बहुत दुख हुआ, हम आपके दुख में शामिल हैं, ये भेज सकते हैं, लेकिन उनके लिए की दुआ नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें थी। तो इंशाल्लाह अगर कोई सवाल है आपके पास तो इंशाल्लाह कुछ सवाल लेंगे। ड्रेस के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में अपने अपनी बातचीत हुई है। अगर कोई सवाल है तो इंशाल्लाह सवाल देंगे, या फिर आपके कोई कमेंट है, आप कुछ कहना चाहते हैं पर्सनालिटी के बारे में, कोई सवाल है तो आप हाथ ऊपर कीजिए। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। If there are no questions, we can end the session. अगर कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह हम लोग सेशन एंड करेंगे। छोटी वाली अगर कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन एंड करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं। जी, हम एंड कर सकते हैं इसको। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।